ओके, हाँ स्टार्ट करो। So, good morning, ma'am, and all my friends. So, I'm going to present my PPT on topic New Subsocial Order, नई सामाजिक व्यवस्था. So, before going to the PPT, first we should look into the content of this PPT. So, the content of this PPT is meaning of social order, classification of social order, new social order, political suborder, economic suborder, educational suborder, other sub-social order, and form of emerging trend in India. Now, before going to the topic, new sub-social order, first we should know the meaning of social order. By social order of a country is mean the social order that has developed as a result of different sub-social order, religion, political, economic, and education. किसी देश की सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य उस देश की विभिन्न उप सामाजिक व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप विकसित सामाजिक व्यवस्था से होता है। जब हम किसी देश या राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस देश और राष्ट्र की अलग अलग उप सामाजिक व्यवस्थाओं जैसे धर्म, राजतंत्र, अर्थतंत्र और शिक्षा के आधार पर विकसित सामाजिक व्यवस्था से होता है। According to the Charles Hutton Cooley, our individual life cannot generally be work of art unless the social order is also. हार्टन कूली के अनुसार हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होगा, किस दिशा में होगा, यह पूरी तरह हमारी सामाजिक व्यवस्था पर निर्धारित होता है। हम जैसी सामाजिक व्यवस्था में रहेंगे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण भी उसी तरह का ही होगा। Now we will look into the classification of social order. So the social order is classified into two categories, old and new. At one time, the social order in our country was chiefly based on religion. So the old social order is mainly based on religion. Whereas, as we can see, the new social order are based on three sub-social orders: political system, economic system, and education. कभी हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से धर्म उप सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं वर्तमान समय में यह मुख्य रूप से राजतंत्र, अर्थतंत्र तथा शिक्षा पर आधारित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान समय में इसमें धर्म और संस्कृति आदि उप सामाजिक व्यवस्थाओं का योगदान नहीं है, उन सबका भी योगदान है, लेकिन इन तीनों उप सामाजिक व्यवस्थाओं के अपेक्षाकृत बहुत कम। So now we will look the definition of new social order. The social order which is chiefly based on sub-social order of political system, economic system, education. ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो मुख्यतः राजतंत्र, अर्थतंत्र तथा शिक्षा उप सामाजिक व्यवस्थाओं पर आधारित है, वह नई सामाजिक व्यवस्था है। So of them the first comes, so we shall discuss it first. We have democratic political system. The preamble of our constitution has its basic spirit. So now we will look into our
preamble. We will look what is written in our preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialistic, secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of operation, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and of integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. इस प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि हमारा भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह 6 मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जो हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय, जिसके लिए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं और सभी के लिए समान कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। हमारे समाज से जाति, धर्म, लिंग किसी के भी आधार पर वर्ग भेद को खत्म करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। As a result, a new sub-social order is developing in the country, which is called democratic socialistic social order, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही है, जिसे लोकतांत्रिक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। So here we discuss the chief characteristics of this social order, means the democratic socialistic social order. So the first characteristic is right to freedom, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने और अपने विकास करने की स्वतंत्रता है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हम दूसरों की स्वतंत्रता का हनन ना करें। The second is right to equality, अर्थात समानता का अधिकार। इसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और सभी के लिए समान कर्तव्य निश्चित हैं। The third is spirit of fraternity, अर्थात भ्रातृत्व का भाव। इसमें सभी व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वह भाईचारे से रहें, सभी एक दूसरे से प्रेम, सहानुभूति और सहयोग पूर्ण व्यवहार करें। The fourth is सोशलिस्टिक ऑर्डर, अर्थात समाजवादी व्यवस्था। इसमें जाति, धर्म एवं लिंग आदि किसी भी आधार पर वर्ग भेद नहीं किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के बीच आर्थिक आधार पर भी भेद नहीं किया जाता है। इसमें अमीर और गरीब दोनों बराबर होते हैं, सभी को समान अवसर मिलते हैं, जिसके कारण सभी एक साथ पढ़ते लिखते हैं, सब एक साथ उठते बैठते हैं और सब एक साथ खाते पीते हैं। The fifth characteristic is secularism, अर्थात धर्मनिरपेक्षता। इसमें सभी को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हमारा उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें धर्म संभाव हो। The sixth characteristic is justice, अर्थात न्याय। इसमें सर्वधर्म हिताय की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमारा संविधान संघर्ष के आधार पर नहीं, विचार विमर्श द्वारा विवादों को सुलझाने में विश्वास रखता है। So these are the characteristics of democratic socialistic social order. Now we will move forward towards the second sub-social order, that is economic sub-order. At present, our country has agriculture economic system, mixed economy,
from other view and we are heading towards industrialization. जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान समय में हमारे देश में एक दृष्टि से देखा जाए तो कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था है और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे कदम औद्योगिकरण की ओर अधिक बढ़ रहे हैं, जिसके कारण नगरीकरण बढ़ रहा है और यह तो हम देख ही रहे हैं। उसकी वजह से हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक ओर तो एजुकेटेड लोगों की मांग बढ़ रही है और दूसरी ओर हमारे बीच ही स्पर्धा के सभी लगे हुए हैं। आज भावनात्मक संबंधों का स्थान आर्थिक संबंधों ने ले लिया है। अब हम एक दूसरे से भावनाओं से नहीं बल्कि अपने आर्थिक हितों के लिए जुड़ते हैं। यह तो हमारी भारतीय संस्कृति है जो इसमें संतुलन बनाए हुए है। Now we will discuss about the educational social order. Education comes at third among the sub-social orders that are influencing Indian sub-social order. Some scholars believe that whatever changes have taken or are taking or will take place in Indian social order, education has a vital role in them, whereas some believe that education is provided according to the social order. कुछ विद्वानों के अनुसार भारतीय समाज में जो भी परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उसमें शिक्षा की मुख्य भूमिका है। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। यह दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम औद्योगिकरण को लेते हैं, एक तरफ कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के कारण देश में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता जा रहा है। इसमें दो मत नहीं कि विज्ञान की समाज में होता है, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। देश मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया तेजी से विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। There are few other social orders too that has contributed in the constitution of new social order in India. These are culture and religion. वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली उस सामाजिक व्यवस्थाओं में चौथे स्थान पर आते हैं धर्म और संस्कृति। भारत विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्म का देश है। इसमें भारतीय मूल की संस्कृतियां मानवीय मूल प्रधान संस्कृतियां हैं। वे वासुदेव कुटुंब की संस्कृतियां हैं। जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, हमारे राजतंत्र में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है, परंतु कुछ कट्टरपंथी इस बात में बाधक हो रहे हैं और की राजनीति की आहुति दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे धार्मिक अंधविश्वास दूर होने की जगह बढ़ता जा रहा है और इसका इस्तेमाल लोग राजनीति में कर रहे हैं। पर कुछ भी हो, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में एक परिवर्तन अवश्य हुआ है। अब यह रूढ़िवादी न होकर प्रगतिशील हुई है और इसमें भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बड़ा सुंदर समन्वय किया गया है।
Now we will see the forms of emerging trends in Indian society. हम सब जानते हैं कि हमारा समाज परिवर्तनशील है। यह दूसरों इसमें परिवर्तन या तो बहुत ही धीमी गति से होता है या तेज गति से होता है, पर होता जरूर है। और अब हम देखेंगे कि हमारे देश में जो भी परिवर्तन होते हैं वो किस किस आधार पर होते हैं। तो द फर्स्ट इज इमर्जिंग ट्रेंड इन सोशल फॉर्म। सामाजिक क्षेत्र में उद्यमन झुकाव। हमारा भारतीय समाज बहुजातीय समाज है। हमारे समाज में अनेक जातियां व जनजातियां हैं। सभी इन जातियों का बंधन बहुत कठोर कठोर थे, परंतु हमारी समानता, समाजवाद और सामाजिक न्याय की नीतियों से वर्ण व्यवस्था और जाति के बंधन ढीले पड़ गए हैं। आज हमारा समाज कुछ वर्गों में बंट गया है। सभी जातियों के बच्चे एक साथ विद्यालयों में पढ़ने और सभी जातियों के व्यक्तियों को एक साथ मोटर रेलगाड़ियों में सफर करने से समाज में अस्पृश्यता में भी कमी आई है। परंतु दूसरी ओर वोट की सामाजिक राजनीति में नए जातीय संगठनों का जन्म दिया है। हमारे हमारे समाज में एक तरफ तो जातियों के आधार पर भेदभाव खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षित लोग बढ़ रहे हैं, परंतु अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीति के कारण हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, जिससे वह अपना निजी लाभ निकाल पाए। द सेकेंड इज इमर्जिंग ट्रेंड इन कल्चरल फॉर्म। सांस्कृतिक क्षेत्र में उदीयमान झुकाव। हमारा भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक समाज है। हमारे समाज में अनेक प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान हैं। इनमें कुछ संस्कृतियां भारतीय हैं और कुछ विदेशी। यूं तो देखने पर लगता है कि हमारी संस्कृति आज कहीं पीछे रह गई है, उसका स्थान पाश्चात्य संस्कृति ने ले लिया है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यहाँ सभी संस्कृतियां अपनी अपनी जगह सुरक्षित हैं। जो कुछ बदलाव आया है वह केवल रहन सहन एवं खान पान की विधियों में आया है, और यह स्वाभाविक भी है। जब भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ रहेंगे तो उनके रहन सहन एवं खान पान में समानता आएगी ही। सच बात यह है कि हमारे देश में शिक्षा के प्रचार से लोगों का दृष्टिकोण बदला जा रहा है। इस समय भारतीय समाज में सांस्कृतिक संकीर्णता के स्थान पर सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास हुआ है। सांस्कृतिक सहिष्णुता उदीयमान भारतीय समाज का एक मुख्य उपलक्षण है। थर्ड इज रिलीजियस फॉर्म इन इमर्जिंग ट्रेंड। इमर्जिंग ट्रेंड इन रिलीजियस फॉर्म। धार्मिक क्षेत्र में उदीयमान झुकाव। हमारे भारतीय समाज में अनेक धर्म हैं, जिनमें से मुख्य हैं हिंदू, इस्लाम, ईसाई और पारसी, पर इनमें भी अनेक उप संप्रदाय हैं। इनमें हिंदू धर्म उदारवादी धर्म है, इसलिए उसमें सैकड़ों उप संप्रदाय को जन्म मिला है और उनमें आपस में कोई टकराव नहीं है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि जब धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे हो रहे हैं। यूं इस बीच वैज्ञानिक आविष्कार और शिक्षा के प्रसार से अनेक धार्मिक अंधविश्वास को अंत किया जा सकता है।
लेकिन अभी भी कुछ स्थानों पर इन अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ है। द फोर्थ इज इकोनॉमिक इमर्जिंग ट्रेंड इन इकोनॉमिक फॉर्म। आर्थिक क्षेत्र में उदयमान झुकाव। आर्थिक स्रोतों की दृष्टि से इस समय हमारे देश व्यवस्था है, भी देख चुके हैं कि हमारे यहाँ मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था ने भी यहाँ पे स्थान बनाया हुआ है। आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रभाव हमारे जीवन स्तर पर अवश्य पड़ा है। कभी सड़क पर एक दो साइकिलें नजर आती थी, अब सैकड़ों हजारों की संख्या में स्कूटर और कारें नजर आती हैं। सभी के घर में फ्रिज है, टेलीविजन है, फोन है, पर साथ ही बौद्धिक सुख भोग की इच्छा भी भ्रष्टाचार, यह सब भ्रष्टाचार, चोर बाजारी और स्मगलिंग जैसी बुराइयों को भी जन्म दे रहा है। सभी एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जब उनको वह अच्छा जीवन नहीं मिल पाता है तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं। The fifth is emerging trend in political form। हम जानते हैं कि हमारा संविधान 6 सिद्धांतों पर आधारित है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय। हमारी इन नीतियों के कारण ही हमारे समाज के स्वरूप में इतना बड़ा अंतर आया है। पर दूसरी तरफ स्वतंत्रता के नाम पर हम विधानसभाओं एवं लोकसभाओं तक में देखते हैं कि एक दूसरे को गलत बोला जाता है। अध्यक्ष आसन तक पहुंच जाते हैं, शोर शराबा करते हैं, काम में रुकावट डालते हैं। देश भर में आए दिन हड़तालें होती हैं, तोड़ फोड़ होती है। समानता के नाम पर हम क्षेत्र, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। भ्रातृत्व के स्थान पर क्षेत्रीयता का नारा देते हैं, धर्म का नारा देते हैं और जाति का नारा देते हैं। न्याय के नाम पर सबल की विजय हो रही है। समाजवाद तो केवल नारा है। हमारा सरकार पूंजीपतियों के हाथों में जा चुकी है। समाजवाद की दुहाई देने वाले अपनी तिजोरियों को भरने में लगे हुए हैं। बहुत ही खराब राजनीतिक माहौल है। धर्म के आधार पर कुछ वर्गों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं। ये हमारे लोकतंत्र को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। द सिक्स्थ इज इमर्जिंग ट्रेंड इन साइंटिफिक फॉर्म। इस बीच हमारे भारतीय समाज में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ है। इसके प्रयोग से देश में उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और देश का आर्थिक विकास भी हुआ है। लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है, पर दूसरी तरफ कई प्रकार के अंधविश्वास अभी भी हमारे देश में फैले हुए हैं। तो हमें इन सबको देखते हुए विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, hotco.com and britannica.com। थैंक यू। थैंक यू अंकिता।